So, students, after the discuss of a point, what was a point? Domestic territory. So, after the domestic or economic territory, after the explanation of domestic territory, we are able to second basic concept related to national income, residents or normal residents of a country. So, what do you mean by normal resident of a country? And here is one question arise: why we study normal resident of a country? Why we study normal resident of a country? So answer of this question you can see again. Remember and recall the definition of national income. National income has been defined as sum of factor income earned by the normal residents of a country. Are you getting my point? National income क्या है? It is defined as factor income. कौन सी factor income? Which earned by the normal residents of a country. Now, our problem has arise that what do you mean by normal residents of a country? Because when we calculated national income, we can add some factor of income earned by किसके दौरान? Normal residents of a country. So, what do you mean by normal residents? A normal residence is said to be a person or an institution. यानी normal resident चाहे वो person के लिए भी हो चाहे institution के लिए भी क्या होगा? Which have there are two features. जो दो features रखता होगा वही normal residents है. What are? First is a normal resident who ordinarily resides or इज लोकेटेड इन अ कंट्री. पहले क्या है कि जो कंट्री में लोकेटेड हो, जो कंट्री में सिचुएटेड हो, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो पर्सन का रेजिडेंस एरिया हो. तो हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स और इज लोकेटेड इन अ कंट्री. एंड सेकेंड थिंग्स हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, उसी कंट्री के लिए उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो. ऐसा ना हो कि वो दूसरी कंट्री में जाके पैसा अर्न किया और दूसरी कंट्री में उसको सेंड कर दिया हो. So, by the help of these 2 points, thus there are 2 conditions to become a normal resident. किसी को भी normal residence बनाने के लिए there are 2 conditions, sufficient condition है. कैसे कह सकते हैं हम कि he or she or this institution is a normal residence? तो there are 2 conditions to become a normal residence of a country. दैट इज हर एन इंस्टीट्यूशन, कि वो कंट्री किसी भी इंस्टीट्यूशन को किसी पर्सन को कैसे नॉर्मल रेजिडेंस करेगा. हियर इज फर्स्ट थिंग्स देयर आर 2 कंडीशन. तो व्हाट आर 2 कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन इज स्टे इन द कंट्री. स्टे इन द कंट्री शुड बी मोर देन अ ईयर. जब भी 1 ईयर से ज्यादा कोई स्टे कर रहा हो, 1 ईयर से ज्यादा किसी ने भी स्टे किया उस कंट्री में, तो ही और सी और वो इंस्टीट्यूशन क्या बन जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट्स. 1 साल से ज्यादा अगर कोई 1 मंथ 2 मंथ के लिए आता है, देन आफ्टर वो अदर कंट्री में चला गया तो ही इज नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा वो कंट्री का. स्टे इन द कंट्री शुड बी मोर देन अ ईयर. सेकेंड थिंग्स, नॉट ओनली दिस इज सफिशिएंट, इंटरेस्ट ऑफ स्टेइंग इन दैट कंट्री, इंटरेस्ट ऑफ स्टेइंग इन दैट कंट्री शुड बी इकोनॉमिक. उसी कंट्री के लिए उसका इंटरेस्ट होना चाहिए in term of economic. What do you mean by economic? For example, like production, if his institution, production, consumption, expenditure, investment, accumulation, all these economic activity related to that country whose interest lie. So by the help of this definition we can explain more about residents or normal residents by the help of notes. तो नोट्स में देखिए आप लोग और क्लियर होगा आपको, बिकॉज इट इज अ टिपिकल कंसेप्ट. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर द डिस्कस ऑफ मीनिंग ऑफ रेजिडेंट्स और नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, नाउ यू कैन सी दैट in regard to the activity of a residents, following important things should be kept in mind. क्या वो important things हैं? उन important things की help से आप लोगों को पता चलेगा कि these are normal resident. You can say there are 2 concepts, citizen and you can see here citizen and resident. Citizen क्या होता है? कोई भी किसी कंट्री का सिटीजन होता है, एंड रेजिडेंट किसी कंट्री में रहता है. बट देयर आर बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन 2 वर्ड, सिटीजन एंड
रेजिडेंट, सिटीजन एंड रेजिडेंट्स आर डिफरेंट, बट दिस डज नॉट मीन दैट ए सिटीजन इज नॉट ए रेजिडेंट। ये जरूरी नहीं है कि कोई सिटीजन रेजिडेंट ना हो, एंड ए रेजिडेंट नॉट ए सिटीजन, ऐसा भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को देखिए, यू आई सपोज दैट हम बोर्न हुए यहाँ पर इंडिया में, तो इंडिया में बोर्न हुए, क्या हुए हम यहाँ के लिए, इंडिया के सिटीजन, और है कहाँ पर रहे हैं, इंडिया में, तो यहाँ के क्या हुए, रेजिडेंट्स। तो वी पीपल आर सिटीजन एंड रेजिडेंट्स बोथ कहाँ के हैं, इंडिया के। सो यू कैन से सिटीजन एंड रेजिडेंट आर different, but this does not means that a citizen is not a resident and a resident not a citizen. A person can be a citizen as well as a resident. कोई भी पर्सन है वो सिटीजन भी हो सकता है और रेजिडेंट भी। जैसे मैंने अभी बताया, हम लोग क्या हैं, हम इंडिया के सिटीजन भी हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं इंडिया का सिटीजन भी हूं एंड मैं यहाँ का रेजिडेंट भी हूं, क्योंकि मेरा यहाँ पर बोर्न हुआ है, मैं यहीं पैदा हुआ, यहाँ का ही मैं सिटीजन हुआ, लीगली सिटीजनशिप है इंडिया की, और रेजिडेंट भी यहीं है क्योंकि घर भी यहीं पर, कंजप्शन भी यहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी यहीं कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन भी यहीं कर रहे हैं, सारी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई टू इंडिया। तो वी आई एम ए सिटीजन एज वेल एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो अ पर्सन कैन बी सिटीजन एज वेल एज अ रेजिडेंट, बट इट इज not necessary that a citizen of a country is necessarily the resident of that country. ये भी जरूरी नहीं है कि कोई सिटीजन, सपोज दैट कोई सिटीजन है वो इसी कंट्री का है और वो इसका रेजिडेंट भी हो, इट इज नॉट पॉसिबल। यू कैन से बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल, a person can be citizen of one country and at the same time a resident of another country. एक पर्सन क्या हो सकता है, सिटीजन एक कंट्री का और सेम टाइम रेजिडेंट दूसरी कंट्री का। फॉर एग्जाम्पल, a person can be citizen of one country and at the same time a resident of another country. For example, a non-resident, NRI, very important example, and you can easily understand by the help of concept of NRI. NRI क्या होता है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का नहीं है लेकिन इंडिया का सिटीजन है। एनआरआई होते क्या है नॉर्मली, सपोज दैट वो बोर्न हुए यहाँ पर पढ़े और बाद में क्या हुआ कि फ्यूचर में जाकर अदर कंट्री में जाके सेटल हो गए, तो उनको क्या बोलेंगे हम, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बट बोर्न कहां पर हुए थे, इंडिया में। सिटीजन कहां के थे, इंडिया के। तो सेम पर्सन सिटीजन है अदर कंट्री का और रेजिडेंट अदर कंट्री का। You can see a non-resident of India. A NRI is a citizen of India. NRI है non-resident of India. A NRI is a citizen of India but a resident of the country in which he live. जहां पे वो रहता है, सिटीजन कहाँ का हो जाएगा, वहां का। तो यू कैन सी अगेन दिस पॉइंट, ये परहास से थोड़ा सा टिपिकल था। सिटीजन एंड residents are different, but this does not mean that a citizen is not a resident. जरूरी नहीं कि सिटीजन रेजिडेंट ना हो, एंड ए रेजिडेंट नॉट ए सिटीजन। अ पर्सन कैन बी सिटीजन एज वेल एज रेजिडेंट। कोई पर्सन क्या हो सकता है, सिटीजन भी हो सकता है और रेजिडेंट भी हो सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री इज नेसेसरी द रेजिडेंट ऑफ कंट्री। ऐसा नहीं कि केवल जो सिटीजन होंगे वही रेजिडेंट होंगे। जैसे एनआरआई, सपोज दैट यहाँ से कोई अमेरिका में सेटल हुआ है, वो अमेरिका का सिटीजन नहीं है बट अमेरिका का क्या हुआ, वो रेजिडेंट, और सिटीजन कहाँ का है, इंडिया का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप क्लियर होगा। यू कैन सी डेफिनेशन ऑफ बोथ। सो अ पर्सन इज सिटीजन और नेशनल, सिटीजन या राष्ट्रीयता, किसी को भी नेशनल बोलेंगे। अ पर्सन इज सिटीजन और नेशनल ऑफ ए कंट्री इन विच ही और सी इज बोर्न। तो जहां बोर्न होंगे वो सिटीजन तो हो ही जाएगा, और सिटीजनशिप इज अलाउड ऑन सम लीगल क्राइटेरिया। बेटा सिटीजनशिप कुछ लीगल क्राइटेरिया से भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंट्रीज में सिटीजनशिप मिलना बहुत इजी होता है, कुछ में बहुत टिपिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहां पर सिटीजनशिप इजीली मिल जाती है। कुछ कंट्रीज में सिटीजनशिप टिपिकल मिलती है, जो अभी यहाँ पे केक का जो आपकी कंट्री में हो रहा था वो सिटीजनशिप को लेकर ही हो रहा था, जो जितना भी ज्यादा वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। नॉर्मली कैसे सिटीजनशिप मिलती है,
कुछ कंट्रीज में तो बोर्न से तो सारी कंट्रीज में है, जहां पर बर्थ हो रहा होगा किसी का वहां पर सिटीजनशिप मिल जाएगी। लीगल कंसेप्ट क्या होता है कि आप दूसरी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह लिए, वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी। आपने दूसरी कंट्री में परचेज कर लिया वहां पर प्रॉपर्टी, वहां की सिटीजन मिल जाएगी। एक लड़की ने दूसरी कंट्री के लड़के से या एक लड़के ने दूसरी कंट्री की लड़की से मैरिज कर ली, तब वहां उस कंट्री की सिटीजन मिल जाएगी। तो इट इज डिपेंड ऑफ कंट्री टू कंट्री हाउ कैन take the citizenship. So you can say a person is citizen or national of a country in which he is born, or citizenship is allowed on some legal criteria. यानी citizenship के लिए या तो born हुआ हो या कुछ legal criteria. On the other hand, a person is treated resident. अब resident किसको बोलेंगे? Of a country on the basic of economic criteria डिस्कस। अब इकोनॉमिक क्राइटेरिया कौन सा? जो उसने प्रोडक्शन करता हो वहां पर, उस कंट्री के लिए उसका इंटरेस्ट हो, उस कंट्री के लिए वो वहां पर कंजप्शन करता हो, एक्सपेंडिचर करता हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट्स, जो वहां पर कंट्री में बसा हुआ है, जो वहां पर रहता है। आर यू गेटिंग? आई होप क्लियर होगा। यू कैन से सम इंपोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एनआरआई, नॉन रेजिडेंट्स के एग्जाम्पल। रेजिडेंट्स तो नॉर्मली आप लोग पहचान लोगे कौन है, बट यहाँ पर नॉन रेजिडेंट्स का है, आइडेंटिफाई करना है। International organization like the World Bank, WHO, IMF are not treated resident of any country. वो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, वो अगर सपोज दैट वहां पर काम कर रहे हैं, चाहे हम सपोज दैट WHO है, वो अदर कंट्री में स्टेब्लिश है, और इंडिया का कोई पर्सन वहां पर वर्क कर रहा है कई साल से, 1 साल से ज्यादा है, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि वो उसी कंट्री का रेजिडेंट है, वो इंडिया का ही रहेगा, बिकॉज WHO इज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो इन ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी बंदे वर्क करते हैं वो सिटीजन नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के रहेंगे? उसी कंट्री में, और उनकी इनकम भी नेशनल इनकम उसी कंट्री की काउंट करेगी जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। तो यू कैन सी अगेन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक, WHO, IMF आर नॉट ट्रीटेड रेजिडेंट्स ऑफ एनी कंट्री बट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। Employees of international organization who are not citizen of the country in which the office are located, यानी जो उस कंट्री के एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन who are not citizen of the country, उस कंट्री के सिटीजन नहीं है वो क्या है? in which the office are located, किस कंट्री के सिटीजन होंगे? जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। यू कैन सी सेकेंड पॉइंट, फॉरेन विजिटर, सपोज दैट अदर कंट्री से विजिटर आते हैं, एंड ट्रेवल्स विजिटिंग द कंट्री फॉर हॉलीडे, रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी टूर्स, बिजनेसमैन टूर्स, स्पोर्ट इवेंट्स, अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स दे आर नॉट रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट्स। उनको भी हम रेजिडेंट्स नहीं कहेंगे जो यहाँ पर किसी पर्पज के लिए आ रहे हैं, यानी कोई हॉलीडे के लिए आ रहा है, मनोरंजन के लिए आ रहा है, क्रिएशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहा है, स्टडी टूर के लिए आ रहा है, बिजनेसमैन हो, स्पोर्ट्स के लिए, इवेंट के लिए आ रहा है, अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहा है, उस सब को आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो क्या होंगे ये सब? नॉन रेजिडेंट्स। यू कैन सी बॉर्डर वर्कर, सपोज दैट कोई बॉर्डर पर वर्कर है और वो रेगुलर क्या करता है? बाउंड्री को पास करता है। हु क्रॉस द बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज रेगुलरली विल बी ट्रीटेड द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन विच दे लाइव, यानी उसको किस कंट्री में करेंगे? जिसमें जा रहा है उसमें नहीं, जहां पे वो लाइव, जहां पे वो रहता है, एंड नॉट द कंट्री वेयर दे गो फॉर वर्क। सपोज दैट वो इंडिया का है, काम कर रहा है पाकिस्तान में, घर है उसका इंडिया में, रेगुलर वो बॉर्डर क्रॉस करता है, तो कहां पे उसको नेशनल इनकम, किस इकोनॉमी, उसका नॉर्मल रेजिडेंट कहां का है? वो इंडिया का, तो इंडिया की जीडीपी में उसको हम इनकम को काउंट करेंगे। यू कैन सी क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन विजिट, कॉमर्शियल ट्रेवल्स एंड सीजनल वर्कर कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री। सीजनल वर्कर है, सीजन के लिए आ रहे हैं, देन आफ्टर दे पीपल गो होम कंट्री, तो उनको भी आप नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहेंगे। लास्ट वन, मेडिकल पेशेंट आया, सपोज दैट कितने भी, एंड स्टूडेंट्स रिमाइन द रेजिडेंट्स ऑफ देयर ओन कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम दे लाइव अबो, इन पर टाइम भी एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरी इस पे क्या था, दूसरे जो भी पर्सन है 1 साल के लिए अगर वो 1 साल से ज्यादा यहाँ पर स्टेब्लिश रहते हैं तो उनको हम अपनी कंट्री का ही रेजिडेंट मानेंगे, और जिस कंट्री के वो थे उनके लिए क्या बन जाएंगे? वो एनआरआई। सपोज दैट कोई अमेरिकन बंदा है, इंडिया में आ गया, इंडिया में आके काम करने लगा और उसको 1 साल से ज्यादा हो गया, पूरी फैमिली सेटल हो गई है, यहीं कंजप्शन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या बन जाएगा? वो इंडिया के लिए रेजिडेंट हो जाएगा और अमेरिका के लिए एनआरआई बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। गेटिंग? सो these the basic features of NRI, and we calculate in national income only income of residents। ये होमवर्क है बेटा आप लोगों का जो आपको फिल करना है, और मेरे पर्सनल नंबर पे आप इसको सेंड कर सकते हो ताकि मुझे भी लगे कि कितने स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं कि नहीं। आप एक ही बार देखो इसको,
विल द, एक ही क्वेश्चन है, विल द फॉलोइंग बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ इंडियन, आंसर विद रीजन। आई हैव मेंशन हेयर 10 पॉइंट्स एंड ईच एंड एवरी पॉइंट्स पर्सन की बात कर रहा है, वो कहां पर क्या है, आपको क्या करना है, विल द फॉलोइंग बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कि क्या ये पर्सन इंडिया के रेजिडेंट हैं। सो आंसर देना है आपको विद रीजन। यू कैन सी हियर इंडियन ऑफिसर वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन चाइना, इंडियन का ऑफिशियल वर्किंग है और वो कहां पर है, इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना, चाइना में लोकेटेड है। अब आप बताओगे कि वो कहां का रेजिडेंट है। एन अमेरिकन टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 मंथ, अमेरिका से कोई आया है, इंडिया में 2 मंथ के लिए स्टे कर रहा है। तो इसी टाइप से हेयर है 10 पॉइंट्स गिवन है। आप लोगों को मैं इसका पीडीएफ बना के सेंड करूंगा नोट्स का, जो आज आपको पढ़ाए गए हैं, एंड आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। और बेटा इनको विद रीजन करके आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे। गेटिंग? थैंक यू स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट थैंक यू, आप लोग इसको करके व्हाट्सएप पे मुझे दिखाना, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टैक्ट मी। स्टे हेल्थी, स्टे होम।